رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، بزرگان دین و ملت اور ہماری پیاری ماں اور بہنوں، آج کی یہ مجلس انتہائی عظیم الشان مجلس ہے. اس مجلس کی نسبت قرآن پاک کی طرف ہے. قرآن پاک دستور الہی ہے. قرآن پاک دستور حیات ہے. قرآن پاک اصول کی کتاب ہے. قرآن آیا ہے اصول اور طریقہ سکھانے کے لیے. ہم صاحب قرآن کہلاتے ہیں. ہم قرآن والے سے جانے جاتے ہیں، یعنی ہم اصول والے ہیں، ہم طریقے والے ہیں. ہم زندگی کے ہر موڑ میں پہلے اصول دیکھتے ہیں، پھر کوئی کام کرتے ہیں. اصول کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھانا پسند کرتے ہیں. ہم مسلمان، ہماری پہچان، ہمارا ایمان ہے اصول. اگر ہم اصول پر عمل نہیں کریں گے تو کائنات میں کوئی آدمی اصول پر عمل نہیں کرے گا. ہندوستان کا جو قانون ہے، ہندوستان کا جو اصول ہے، سب سے زیادہ عمل مسلمان کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مسلمان اصول پر زندگی گزارتے ہیں، اصول کو مانتے ہیں، اصول ماننے والے ہیں. قرآن مسلمان دونوں کا تعلق بڑا گہرا ہے، بڑا مضبوط ہے. ویسے یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اسی طرح قرآن مقدس بھی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ نے بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. عالمین کے لیے ہے نبی، پوری دنیا والوں کے لیے ہے نبی، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے نبی ہے. کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص ملک کے لیے نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام دنیا والوں کے لیے. تو تمام دنیا والوں کے لیے نبی. آئیے قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ قرآن کے بارے میں. قرآن عالمین کے لیے ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہے. جو نبی کے لیے فرمایا اللہ نے، وہی قرآن کے لیے فرمایا اللہ نے. نبی رحمت للعالمین ہے تو قرآن ذکر للعالمین. سب کے لیے ہے قرآن، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. مسلمان خوش نصیب ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. تو ہم اصول والے ہیں، ہم اصول کے مطابق کام کرتے ہیں. اب انصاف سے بتائیے، تقریر تو آپ نے بہت ساری سن لی، مسلسل 1.5 گھنٹے سے تقریر آپ سن رہے ہیں، اور معزز شعراء اعظام نے بہت کچھ آپ کو سنایا ہے. یہ پروگرام منعقد کیا ہے جناب شمشیر صاحب نے. ان کو اس علاقے کے لوگ ٹارجن کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے، اور منعقد کرنے والے معاون مددگار بے شمار
उनमें सर फहरिस्त आलिम दीन मशहूर हजरत मौलाना नौशाद साहब और इनके घर के दिगर अफराद जनाब हाफिज महफूज साहब, जनाब शिफाउल्लाह साहब वगैरह। प्रोग्राम को चलाने के लिए, मुनअकिद करने के लिए भी तो उसूल चाहिए। हम उसूल वाले हैं ना, हर काम को हम उसूल और कायदे और तरीके से करते हैं, तो प्रोग्राम को भी तो तरीके और कायदे और उसूल से करना चाहिए और सबको करना चाहिए। सिर्फ वही लोग मुखातब नहीं है, हम सब मुखातब हैं। हम कोई भी काम करें बुजुर्गों उसूल के साथ करें। अगर उसूल के साथ करेंगे तो काम से बरकत नजर आएगी, फायदा नजर आएगा, लोग मुस्तफीद होंगे, खुद भी मुस्तफीद होंगे। लेकिन अगर बेउसूली हुई, खुदा की कसम, चाहे कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो, उस काम से न खुद को फायदा हो सकता है न आवाम को फायदा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे काम से हमको भी फायदा हो, दूसरों को भी फायदा हो, तो जरूरी है कि उस काम को उसूल के मुताबिक किया जाए। इतना बड़ा काम और बेउसूली के साथ हो तो कैसे जो है इससे फायदा होगा और कैसे हम इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। इख्तिसार के साथ दो चार उसूल हम बता रहे हैं। क्यों? इसलिए कि प्रोग्राम होते रहते हैं और प्रोग्राम हम ही लोग करते हैं, कोई अलग से बाहर से नहीं आता है, करने वाले हम ही लोग रहते हैं। इसलिए आइंदा हम लोग सब मिलकर इंशाअल्लाह उसूल के मुताबिक प्रोग्राम करेंगे। पहला उसूल ये है, मोटा उसूल वो ये है कि प्रोग्राम से पहले खाना नहीं खिलाया जाता है। किसने कहा? मजदूरी कब मिलती है हिसाब से बताइए तो। मजदूरी कब मिलती है? काम करेगा तब ना मजदूरी मिलेगी। आते ही नौकर को मजदूर को मजदूरी दे दी जाएगी कि काम के बाद मजदूरी दी जाएगी। उसूल ये नहीं है कि प्रोग्राम से पहले खाना खिला दिया जाए। यहाँ यही हुआ है, ये बेउसूली हुई। हमको रांची से आपने बुलाया है और हम रांची से आए हैं, मगर हम बोलेंगे वही जो हक है, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। हमने तो माजरत चाही थी कि हमारे इलाके में अच्छे अच्छे उलमा हैं, उन्हीं से काम ले लीजिए। हम रांची में, हम हुसैन कड़रू में बुध को वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उसी के इंतजाम और इंसराफ में और भाग दौड़ में लगे हुए हम लोग सब हैं, इसलिए हमको माफ़ कर दीजिए। लेकिन नहीं, फोन पर फोन और आने पर मजबूर किया। उनकी अकीदत है, मोहब्बत है हमसे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। लेकिन उसूल के साथ हर काम को करना चाहिए। आइंदा कभी प्रोग्राम कीजिएगा, खाना प्रोग्राम के बाद होगा, प्रोग्राम से पहले नहीं होगा। मेहमान हो खुसूसी, जब मेहमान हो उमूमी, उनको प्रोग्राम के बाद खाना दिया जाएगा। तो खाना खाने के बाद प्रोग्राम करने वाले भी सही ढंग से नहीं करेंगे और प्रोग्राम सुनने वाले भी सही ढंग से नहीं सुनेंगे। दूसरा उसूल आप ये ज़हन नशी कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आपको मालूम भी है, हमको सबको मालूम, अगर हम अमल नहीं करते हैं, इरादा कीजिए कि हम अमल करेंगे कि प्रोग्राम की जब लिस्ट बने, फहरिस्त बने, नाम जब लिखे जाते हैं कि तिलावत फलां आदमी करेगा, नात फलां आदमी पढ़ेगा और तकरीर फलां आदमी करेगा, फलां आदमी करेगा, सब कुछ किया जाता है, मगर टाइमिंग मुतय्यन नहीं की जाती है, वक्त मुकर्रर नहीं किया जाता है। कितना वक्त और कै मिनट की तिलावत होगी और कितना लंबा कलाम पेश किया जाएगा नात के नाम पर और कितनी लंबी चौड़ी तकरीर होगी, इसकी वजाहत नहीं होती है। बराए करम उसूल ये है जलसे का कि नाम के बाद टाइम भी लिख दें कि तिलावत 5 मिनट में मुकम्मल करनी है, नात 7 मिनट में मुकम्मल करनी। मिसाल के तौर पर तकरीर अव्वल 15 मिनट की होगी, तकरीर सानी 20 मिनट की होगी, तकरीर सालिस 1 घंटे की होगी। मिसाल के तौर पर वक्त वहाँ फिक्स कर देना चाहिए, मुतय्यन कर देना चाहिए। और जो माइक पर आएगा नात पढ़ने वाला या तिलावत करने वाला या तकरीर करने वाला, उसको बता दिया जाए कि आपका ये टाइम है, न 1 सेकंड आगे न 1 सेकंड पीछे, आपको उसी मुकर्ररा वक्त पर अपनी बात को रखनी और खत्म करनी है। इंसाफ से बताइए, इमाम साहब अगर वक्त पर नहीं आएंगे और वक्त पर नमाज खत्म नहीं करेंगे तो सब खामोश रहेंगे कि उस इमाम को निकाल के बाहर कर देंगे? कि वक्त पर नमाज नहीं पढ़ाते हैं, वक्त का ख्याल नहीं करते हैं, रुकू लंबा कर देते हैं। ये सिर्फ इमाम के लिए है, रुकू लंबा कर दे रहा है, एतराज करने वाले 1000 आ जाते
जाते हैं, जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं बुरा भला कहने के लिए, वो लोग भी घर से बाहर आ जाते हैं जो अजान सुनकर घर से बाहर नहीं आते हैं। तो लंबा रुकू कर रहे हैं, लंबा सजदा कर रहे हैं, वहाँ हजार एतराज करने वाले हैं। लेकिन जलसे में जहाँ इस्लाह होती है, लोगों को सही रास्ता दिखाया जाता है, रहबरी की जाती है, बताया जाता है कि जीने का तरीका क्या है, बताया जाता है कि जिंदगी गुजारने का सलीका क्या है। अगर यही पे सलीकी हो और यही तरीके से ना काम ना हो तो फिर बताइए कि लोगों को फायदा कैसे होगा। तो टाइम भी मुतय्यन कर दिया जाए। शायद इसको बताने के लिए मेरा भी टाइम वक्त जो मुकर्ररा जो वक्त दिया गया है उससे आगे बढ़ जाए। इसलिए बस हासिल ये है कि कोई भी हम काम करें तो उसूल से करें। अब आइए, वक्त ज़्यादा हो रहा है, हम लंबा वक्त नहीं लेंगे, इसलिए कि हमारे दरमियान हमारे उस्ताद मुकर्रम तशरीफ रखते हैं, जिनसे हमने पढ़ा है ना। एहसान है उनका कि उन्होंने पढ़ाया, मोहब्बत के साथ पढ़ाया, प्यार के साथ पढ़ाया, सब कुछ सिखाया, और उसका नतीजा आप जरा देख रहे हैं कि आज हम उनके सामने सबक सुना रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। आपको मालूम है कि दारुस्सलाम करमई से है ना मयनास उस्ताद और मुकर्रिर साहिब इल्म, साहिब तक़वा व तहारत मौजूद हैं, जिनको आप जानते हैं, वो हमारे उस्ताद हैं। बहरहाल ये